Chaliye students, let's go for these question answers. So what is question number 1? Turn on your videos everyone. So the first one is, what is journal? So what is journal? Yes students, क्या होता है journal? Journal is a book of accounts where transactions are recorded for the first time. That can be the answer. और journal is a primary books of account. इस तरह से आप उसको explain कर सकते हैं one line में. What is narration? Narration is brief explanation of the transaction. Narration का explanation क्या देंगे बेटा? It is brief explanation of the transaction. What is GST? GST is an indirect tax and known as goods and services tax. So that can be the answer for GST. In which year GST was imposed by the central government of India? Yes students. What was the year when it was imposed by the central government of India? कौन बताएगा? कौन से साल में impose किया बेटा GST? 2017. So it has been imposed in the year 2017. What is meant by simple entry? Simple entry is such an entry where there is one debit and one credit. That is called as a simple entry. Another one. What is meaning of combined entry? Combined entry is nothing but where there is more than one debit or more than one credit affected for a transaction. That is called as a combined entry. Combined entry का मतलब क्या बेटा? सीधा साधा है कि अगर एक डेबिट के बजाय एक से ज्यादा डेबिट है और एक क्रेडिट के बजाय एक से ज्यादा क्रेडिट है, then that is called as a combined entry. Next one, which account is debited when rent is paid by debit card? Yes student, अगर रेंट आपने दिया डेबिट कार्ड से तो कौन सा अकाउंट इंपैक्टेड होता है बेटा? बोलिए. रेंट इज पेड बाय डेबिट कार्ड. रेंट अकाउंट. एब्सोल्युटली. रेंट अकाउंट इज डेबिटेड एंड बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड. तो उन्होंने पूछा है कि कौन सा अकाउंट when rent is paid by debit card, which account is debited? So obviously it is rent account. That is the right answer. Next, which discount is not recorded in books of account? Trade discount is never recorded in books of account. That is what we have seen. Next one, in which order monthly transactions are recorded in a journal? Chronological order. Chronological order means the way they happen. जिस तरह से होंगे उसी तरह से वो रिकॉर्ड किए जाएंगे बेटा, तो उसको chronological order बोलते हैं. Which account is credited when goods are sold on credit? Goods आप जब भी क्रेडिट पे बेचते हैं तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है बेटा? कौन सा? सेल्स अकाउंट. Yes, it is sales account is credited and parties account is debited. Party debit होती है और sales credit होता है. That is the right answer there. Now let's go for give one word or phrase for each of the following statements. And yes, now this is completed by you. अभी आपको बोलने फटाफट आंसर्स. लेट्स स्टार्ट विद गणेश. गणेश बोलो पहले 5 बेटा फटाफट. पहले 5 आपको बोलने हैं, फिर बच्चे वाले 5. आयुष राठौड़, इफ यू कैन टर्न ऑन योर कैमरा. The camera is not visible, Ayush. Sir, first is a journal. क्वेश्चन पढ़ना बेटा, पहले स्टेटमेंट पढ़ना है फिर आंसर बोलना है. नंबर 1, a book of prime entry is journal. Correct. Second, पढ़ो बेटा, पहले स्टेटमेंट पढ़ो. नहीं आ रहा है तो मैं आंसर दे देता हूं. Tax imposed by government on goods and services. The tax imposed by central government and goods and services, that is GST. Answer is GST, goods and services tax. GST answer है बेटा इसका. Number 3, The explanation of an entry is narration. yes, it is narration, brief explanation of an entry. Number 4, The process of recording transaction in the journal is journalizing. This is called as journalizing. इसको journalizing बुलाते हैं बेटा. The process of recording the transactions in journal is called as journalizing. Next one, the French word which the word journal is. yes, the French word from which the word journal is derived, that is jour, J-O-U-R, and it does mean that daily records, book of daily records इसका मतलब है, तो that is called as jour. Next one, yes, Ayush Rathod, are you there? I think he is not there. Ayush, you can go ahead for the remaining 5, my dear. Yes, sir. Concession given for immediate payment
is cash discount. Yes, concession given for immediate payment is cash discount. Next one. Entry in which more than one account are to be debited or credited is combined entry. Yes, entry in which more than one accounts are to be debited or credited is combined entry. Next one. Anything taken by proprietor from business for his private use is drawing. Drawings, absolutely right. Next one. A tax payable to the government on purchase of goods is input tax. Yes, it is input GST. Tax payable to the government on purchase of goods is input GST, you can say. And moreover, you can write down input CGST and input SGST. इस तरह से भी लिख सकते हैं. Last one बेटा. Page number of the ledger is the ledger folio. Correct. It is ledger folio. Next question. Question number 3. So any doubt into question number 2? Anybody? Question number 2 में कोई doubt है बेटा? या clear है सबको? Everybody is clear? So let's go for question number 3 then. Yes, question number 3. Half will be done by Isha, half will be done by Saidnya. Let's start with Saidnya. Saidnya, please go ahead. Narration means explanation of the transaction recorded in the journal. Very good. Narration means explanation of the transactions recorded in the journal. Narration होता है जिसका मतलब है कि transactions are recorded in the journal there. Next one बेटा. Trade discount is not recorded in the books of accounts. Trade discount is not recorded in the books of account. Absolutely right. The recording of transaction in journal is called journalizing. Yes, recording of transactions in journal is called as journalizing. Every journal entry requires narration. Yes, every journal entry require brief explanation of the transaction, that is narration. The ledger folio column of the journal is not recorded at the time of journalizing. Yes, the ledger folio column of the journal is not recorded at the time of journalizing. It is recorded when we are going to prepare the ledger accounts. जब हम ledger बनाएंगे बेटा तब इसको रिकॉर्ड किया जाता है. जब हम जर्नलाइज करते हैं तब इसको रिकॉर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है. वैसे तो आजकल मैनुअल होता ही नहीं है तो ये रिकॉर्ड करने की नौबत ही नहीं आती है. रिमेनिंग 5. यस ईशा प्लीज. Goods sold on credit should be debited to customer account. Absolutely right. Goods sold on credit is always debited to the customer account. It is customer account debit to sales account or parties account debit to sales account. Hence it is customer account or parties account. That is correct. Next one. Wages paid for installation of machinery should be debited to installation account. The wages paid for installation of machinery should be debited to machinery account, my dear. मैंने कोई रूल दिया था आपको लिख के, याद है? क्या रूल दिया था? When any asset is purchased and expenses are incurred on its installation, erection or transportation, such expenses should be added into the cost of the assets. लिखिए बेटा, रूल लिखिए सब लोग. If any fixed asset is purchased, सबने लिखना है रूल फटाफट. If any fixed asset is purchased, write down everyone. बड़ा important rule है बेटा. If any fixed asset is purchased, into bracket, क्या क्या होते हैं बेटा fixed assets बोलिए. If any fixed asset is purchased, into bracket, land and building, comma plant and machinery, comma furniture and fixture, comma motor car. If any fixed asset is purchased, into bracket, land and building, comma plant and machinery, comma furniture and fixture, comma motor car, bracket close, and further expenses are incurred. Next one. And further expenses are incurred. And further expenses are incurred or paid. And further expenses are paid for transportation, oblique installation. I'm writing all the terms on the screen, you can see there. For the transportation, oblique installation, oblique erection. For transportation, oblique installation, oblique erection, comma, then such expenses are considered as,
then such expenses are considered as part of the cost of the asset. Then such expenses are considered as part of the cost of the assets. Then such expenses are considered as part of the cost of the fixed asset. यानी जब भी आप कोई असेट खरीदते हैं और असेट खरीदने के बाद, कौन सा असेट बेटा? फिक्स्ड असेट बोला है मैंने. फिक्स्ड असेट मतलब लॉन्ग टर्म असेट्स विच आर परचेस्ड फॉर यूज एंड नॉट फॉर रीसेल पर्पज. ये आपने यूज करने के लिए खरीदा, अपने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा, प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, फर्नीचर एंड फिक्सचर खरीदा, कार खरीदी. अब आप ये बेचने वाले या यूज करने वाले? आप तो यूज करेंगे बिकॉज दीज आर द लॉन्ग टर्म असेट्स. अब जब ये असेट खरीदा तो असेट खरीदने के बाद कुछ पैसा आपको पे करना पड़ रहा है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए या इरेक्शन के लिए. व्हाट डज इट मीन? आपने इंपोर्टेड मशीनरी मंगाई, अब वो एक पोर्ट से आ रही है और आपके यहां तक आएगी तो बड़ा ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस आपको देना पड़ेगा. अलॉन्ग विद दैट यू आस्क्ड फॉर इंपोर्टेड कार, तो वहां पे भी बड़ा एक्सपेंडिचर होता है वहां से यहां तक आने में, ट्रांसपोर्टेशन में. तो आप अगर कार नहीं खरीदते, प्लांट एंड मशीनरी खरीदते नहीं, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन भी देने की कोई जरूरत नहीं है. सेम वे यू आस्क्ड फॉर इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी आ गई, लेकिन अब उसको लगाने का खर्चा है इंस्टॉलेशन का. अगर खरीदते नहीं तो इंस्टॉलेशन का खर्चा बनता क्या? नहीं. दैट इज हाउ ऑल सच एक्सपेंसेस विच आर इंसिडेंटल टू द परचेस ऑफ फिक्स्ड असेट. इंसिडेंटल मतलब अगर आप परचेस ही नहीं करते फिक्स्ड असेट तो ये एक्सपेंसेस देने की कोई जरूरत होती ही नहीं. दैट इज हाउ सच एक्सपेंसेस आर कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द असेट. मैंने मतलब कार अगर खरीदी 20 लाख की और उसका ट्रांसपोर्टेशन पड़ा मुझे 5 लाख, तो कार की कॉस्ट 20 लाख नहीं है, कार की कॉस्ट कितनी हो गई? 25 लाख. क्यों? क्योंकि अगर 20 लाख की कार ही नहीं खरीदते तो 5 लाख का ट्रांसपोर्टेशन भी देने की कोई जरूरत नहीं थी. सिमिलर वे फॉर प्लांट एंड मशीनरी से यू परचेस फॉर ₹50 lakh and its installation has costed you ₹5 lakh. So the cost of the plant and machinery is not 50 lakh, it is 50 plus 5, 55 lakhs. In that case, wages paid for installation of machinery should be debited to इंस्टॉलेशन अकाउंट. नहीं, क्या आएगा? मशीनरी अकाउंट. क्योंकि आप अगर मशीनरी नहीं खरीदते तो ना लेबर इंस्टॉलेशन करने आते, ना उनको पेमेंट करने की जरूरत पड़ती. दैट इज हाउ सच वेजेस आर डेबिटेड टू द मशीनरी अकाउंट. ये कॉस्ट ऑफ द असेट में ऐड होता है. क्या खरीदा आपने? मशीनरी, तो मशीनरी में ऐड करो बेटा, इसलिए मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा. रूल समझ में आया सबको? So it is, if any fixed asset is purchased, say land and building, plant and machinery, furniture and fixture and motor car, and any expenses are paid for transportation, installation or erection, such expenses should be considered as part of the fixed asset. ये fixed asset का part ही बोल के consider करना है. Next one, yes ईशा, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा बेटा? मशीनरी अकाउंट आएगा. करेक्ट? हाँ सर. यस, बोलिए आगे. The commission paid to the agent should be debited to commission account. Yes, commission paid to the agent should be debited to commission account. जो भी कमीशन आप एजेंट को पे करते हैं वो आपको डेबिट करना है कमीशन अकाउंट को. एंट्री क्या होगी? कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि आपके लिए तो एक्सपेंडिचर है. नेक्स्ट वन, Loan taken from Dena Bank should be credited to Dena Bank loan account. yes, loan taken from Dena Bank should be credited to Dena Bank लोन अकाउंट. एंट्री क्या होगी बेटा? जर्नल एंट्री. जब आप लोन लेते हैं देना बैंक से तो जर्नल एंट्री क्या होगी? चलो फटाफट बोलना है. नहीं, ध्यान से सोचना है. ट्रांजैक्शन क्या है? लोन टेकन फ्रॉम देना बैंक ऑफ ₹50 lakh. फटाफट 2 मिनट देता हूं, एंट्री मुझे बताओ. सब लोगों ने बताना है, ऑनलाइन ऑफलाइन. क्या है ट्रांजैक्शन? लोन टेकन फ्रॉम देना बैंक ऑफ ₹50 lakh. सोचो 2 मिनट, करो. आपके नोटबुक में क्या करना है, मुझे 2 मिनट बाद एंट्री बोलनी है. यस, सबसे पहले नो दैट इज रॉन्ग. टेक योर टाइम माय डियर. आप गड़बड़ कर रहे हो, थोड़ा टाइम लो, इसलिए बोल रहा हूं, गड़बड़ मत करो. दो मिनट सोचो.
अगर आपने लोन लिया तो पहले दो अकाउंट बोलिए कौन से इंपैक्ट होंगे. यस आयुष बोलो. पहला, चलो आयुष बोल रहा है एंड ही इज सेइंग फर्स्ट अकाउंट इंपैक्टेड इज देना बैंक अकाउंट. सेकंड अकाउंट बेटा. यस आयुष यू आर करेक्ट, गो अहेड, डोंट फियर, बी फियरलेस. सही बोल रहे हो बेटा, आप सही जगह पे हैं. दूसरा अकाउंट क्या होगा? क्या होगा दूसरा अकाउंट बेटा? देना बैंक. करेक्ट. आपने कभी सुना है कि बैंक ने आपको लोन दिया और कैश में दिया, या बैंक आपको बोलती है अकाउंट ओपन करो, वो अकाउंट में आ जाएंगे पैसे? ये बात याद रखनी है बेटा. Whenever any bank gives loan, first bank will ask you to open an account in that bank. छोटे से छोटा लोन हो, लेकिन वो क्या बोलेंगे आपको? पहले अकाउंट ओपन करना पड़ेगा आपको हमारे पास, फिर लोन की फॉर्मेलिटी करेंगे. जैसे ही लोन सैंक्शन होगा वो अकाउंट में आएगा एंड फ्रॉम दैट अकाउंट यू कैन विथड्रॉ द अमाउंट ऑफ लोन. लोन देने पे कभी कैश डेबिट नहीं होता, याद रखिए. क्या डेबिट होना चाहिए? बैंक अकाउंट ऑफ कंसर्न कस्टमर. क्यों? क्योंकि लोन पहले उसके अकाउंट में चला जाता है और फिर वहां से वो विथड्रॉ कर सकता है. फिर वो चेक से करे, कैश से करे, कैसे भी करे, उसको दे दिया लोन. लेकिन कैश में कभी लोन दिया नहीं जाता. बोथ दीज आर पर्सनल अकाउंट्स, एम आई करेक्ट? देना बैंक भी पर्सनल है और देना बैंक लोन भी पर्सनल है. सो बोथ आर व्हाट? पर्सनल अकाउंट्स. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. किसको मिले पैसे? किसके अकाउंट में पैसे आए? आपके अकाउंट में पैसे आए जो देना बैंक में है. सो डेबिट द रिसीवर. किसने दिए? देना बैंक लोन अकाउंट. सो देना बैंक इज डेबिटेड एंड देना बैंक लोन अकाउंट इज credited, and that is how this way around, if loan taken from Dena Bank, it should be credited to Dena Bank loan account. Is that clear? सबको clear है? ईशा, आयुष, गणेश, रश्विता, Yes, sir. clear है क्या? चलो ईशा, last one. Purchase of animals for cash should be debited to livestock. Yes, याद रखिए, जब भी आप कुछ एनिमल्स खरीदते हैं तो बिजनेस में इसको क्या बुलाया जाता है बेटा? बिजनेस में इसको बुलाया जाता है लाइव स्टॉक. लाइव स्टॉक मीन्स व्हाट? स्टॉक ऑफ एनिमल्स. लाइव स्टॉक का मतलब क्या है? स्टॉक ऑफ एनिमल्स. तो ये लाइव स्टॉक अकाउंट को आप डेबिट करेंगे. परचेस ऑफ एनिमल्स फॉर कैश शुड बी डेबिटेड टू लाइव स्टॉक अकाउंट. सो दैट इज व्हाट द लास्ट वन, दैट इज 10th one. नेक्स्ट वन. यस, हु इज पेंडिंग? आई थिंक ऑल आर डन. Let's go for these students now. State whether the following statements are true or false with reasons. True or false बोलना है और वो भी along with reasons बोलना है. चलिए first one. Yes, Riya. Narration is very much required. So first statement is false because it says that narration की कोई जरूरत नहीं है हर एंट्री के लिए. Statement true नहीं है. Statement क्या है? फॉल्स है, क्योंकि नरेशन की जरूरत है. बिना नरेशन की एंट्री हो ही नहीं सकती. सेकंड, यस, वाउचर की जरूरत होती है जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं. वी नीड अ प्रूफ that you purchased, you sold, you paid, you received, you purchased on credit, you sold on credit, you purchased on cash, you sold on cash, and that proof is nothing but a journal voucher. So statement is true. True statement के लिए कोई reason देने की जरूरत नहीं है. false रहा तो reason देना पड़ता है. Number 3, cash discount allowed should be debited to discount account. हमने डिस्काउंट दिया किसी को तो वो तो डेबिट करना पड़ेगा, बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. आपको अगर डिस्काउंट मिलता है एज अ बिजनेस तो उसको क्रेडिट करेंगे, आप अगर अलाउ करेंगे तो उसको डेबिट ही करना पड़ेगा. सो दैट इज करेक्ट. नंबर 4, जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री. अगेन दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि यस जर्नल क्या है? अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री है और स्टेटमेंट ट्रू है. नंबर 5, trade discount is not recorded in the books of account. Indeed. And why it is not recorded? Because it is the discount which is given to encourage the wholesaler to sell at MRP and still earn profit. इसलिए trade discount is never recorded neither in the books of seller nor in the books of buyer. इसलिए trade discount बेटा ना seller के books of account में रिकॉर्ड किया जाता है, ना buyer के books of account में रिकॉर्ड किया जाता है. Next one. Yes, Ayush. 6, 7, 8, 9, 10. Goods lost by theft
is debited to goods account. ऐसा कुछ होता है क्या? Goods lost by theft is debited to goods account. No, it is lost by fire account, debit to purchases account. हमने देखा है जब भी गुड्स आप विड्रॉ करते हैं पर्सनल यूज के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फ्री सैंपल बोल के, या फिर गुड्स जल जाते हैं, चोरी हो जाते हैं, कहीं पे डैमेज हो जाते हैं, इन ऑल सच केसेस इट इज रिटन एज गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, गुड्स स्टोलन इन, गुड्स थेफ्ट बाय, और गुड्स थेफ्ट और लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट. यानी डेबिट क्या होगा? लॉस अकाउंट होगा, क्योंकि ये लॉस है आपके लिए, और क्रेडिट क्या होगा? परचेसेस अकाउंट होगा. सो दैट इज व्हाट. तो ये स्टेटमेंट कैसे हुआ? फॉल्स. एम आई राइट? क्योंकि गुड्स अकाउंट डेबिट नहीं होता. डेबिट क्या होता है? लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस इन ट्रांजिट. सो दीज अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड क्रेडिट विल बी परचेसेस अकाउंट. तो स्टेटमेंट फॉल्स है. नंबर 7, इफ रेंट इज पेड टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड्स अकाउंट शुड बी डेबिटेड. फॉल्स अगेन, क्योंकि रेंट आप जब पे करते हैं तो एंट्री क्या बनती है? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. आपने चेक से दिया, डेबिट कार्ड से दिया, क्रेडिट कार्ड से दिया, वॉलेट से दिया, तो रेंट टू बैंक, और आपने कैश से दिया तो रेंट टू कैश. सो दैट इज व्हाट इट मेक्स अ डिफरेंस देयर. बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन. अगेन फॉल्स. बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन. बुक कीपिंग सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है बेटा. ड्रॉइंग मेड बाय द प्रोप्राइटर इंक्रीजेस हिज कैपिटल. फॉल्स अगेन, बिकॉज ड्रॉइंग ऑलवेज रिड्यूसेस द कैपिटल. बराबर है क्या बेटा? ड्रॉइंग ऑलवेज रिड्यूसेस द कैपिटल, हेंस स्टेटमेंट इज फॉल्स. लास्ट वन, जीएसटी पेड ऑन परचेस ऑफ गुड्स, इनपुट टैक्स अकाउंट शुड बी डेबिटेड. अगर जीएसटी आपने पे किया है परचेस ऑफ गुड्स पे, तो इनपुट टैक्स अकाउंट डेबिट होता है. यस, इनपुट जीएसटी एंड इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी. तो बराबर है, इनपुट टैक्स अकाउंट डेबिट होता है. तो स्टेटमेंट इज ट्रू. एम आई राइट एवरीबडी? एनी डाउट स्टूडेंट्स? ये 10 सेंटेंस में कोई डाउट है बेटा ट्रू और फॉल्स में? है तो जरूर पूछिए आप. आई होप एवरीबडी इज गेटिंग ऑल दीज 10. यस और नो? यस स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग देम? Yes, sir. Okay, good. Next one, fill in the blanks. Fill in the blanks. Who will go for this? Yes, Tanish, please. The first book of original entry is the journal. That is the right answer. Second, The process of recording transaction into journal is called journal. journalizing. The process of recording transactions into journal is called as जर्नलाइजिंग. इसको जर्नलाइजिंग बुलाते हैं बेटा, जो प्रोसेस होती है ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करने की. नेक्स्ट वन, एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द जर्नल इज नरेशन. जो एक्सप्लेनेशन देते हैं आप ट्रांजैक्शन का जर्नल में, उसको हम क्या बुलाते हैं? नरेशन. नंबर 4, डैश डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. ट्रेड डिस्काउंट हम रिकॉर्ड नहीं करते बुक्स ऑफ अकाउंट में. नेक्स्ट वन, concession allowed for bulk purchase of goods or for immediate payment. Wrong. It is not cash. It is trade. Trade discount हम bulk buying पे देते हैं बेटा. Dash is concession. सिर्फ dash is concession बोला है. मेरे ख्याल से यहाँ पे ना कैश है ना ट्रेड है. वर्ड क्या फिट होता है यहाँ पे? डिस्काउंट इज राइट आंसर. यहाँ पे आंसर क्या है? डिस्काउंट, क्योंकि ये दोनों बोल रहा है. डिस्काउंट इज अ कंसेशन अलाउड फॉर बल्क परचेस ऑफ गुड्स और फॉर इमीडिएट पेमेंट. और फिर डिस्काउंट के दो टाइप्स, एक ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा कैश डिस्काउंट. बड़े होशियार है यहाँ पे, ये इन्होंने बड़ा होशियारी की है. बोला क्या है, कौन सा होता है? डैश इज द कंसेशन, है ना? डैश इज द कंसेशन विच इज गिवन फॉर बल्क परचेस ऑफ गुड्स और फॉर इमीडिएट पेमेंट ऑफ कैश. तो उसको तो डिस्काउंट बुलाते हैं. डिस्काउंट आगे चल के क्या होता है? ट्रेड और कैश बन जाता है. पहले तो डिस्काउंट है वो. तो यहां पे राइट आंसर क्या है? डिस्काउंट. सिर्फ डिस्काउंट आएगा, नीदर ट्रेड नॉर कैश, रादर बोथ ऑफ देम, क्योंकि दोनों ने दिया है उन्होंने वहां पे. बराबर है. नेक्स्ट वन, यस तनीश. बल्क मतलब ह्यूज. ह्यूज बाय करना. जैसे मैंने बोला, शादियों में आप बहुत जम के खरीदी करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं ना, क्योंकि शादियों में बहुत सारे आपको कपड़े चाहिए, साड़ियां चाहिए, ड्रेसेस चाहिए, तो बल्क में लेते हैं तो वहां पे डिस्काउंट मिलता है, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट. और जो आप इमीडिएट पेमेंट पे लेते हैं, गूगल पे, अमेजॉन पे, पेटीएम, ये सारे
कैश डिस्काउंट है. सो दैट इज हाउ इट इज. यहाँ पे डिस्काउंट वर्ड राइट है बेटा. एवरी जर्नल एंट्री रिक्वायर्स नरेशन. एवरी जर्नल एंट्री रिक्वायर्स नरेशन. बिना जर्नल एंट्री के बाद नरेशन तो मैंडेटरी है. तो एवरी जर्नल एंट्री रिक्वायर्स नरेशन. हर जर्नल एंट्री के बाद नरेशन है. जर्नल एंट्री के पास करने के पहले वाउचर चाहिए. बिना वाउचर के जर्नल एंट्री हो ही नहीं सकती. तो जर्नल एंट्री होने के बाद क्या चाहिए? एवरी जर्नल एंट्री रिक्वायर्स नरेशन. नेक्स्ट वन. डैश डिस्काउंट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. कैश डिस्काउंट. कौन सा डिस्काउंट रिकॉर्ड करते हैं बेटा? कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड करते हैं हम बुक्स ऑफ अकाउंट में, याद रखिए. नेक्स्ट वन. वाउचर इज द डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच द एंट्री इज रिकॉर्डेड इन जर्नल. यस, इसको वाउचर आप बुला सकते हैं. वाउचर ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पे आप जर्नल पे रिकॉर्ड करते हैं, एंड दैट इज ट्रू. नेक्स्ट वन. देयर आर 3 पार्टीज टू अ चेक. चेक के लिए कितनी पार्टीज होती है? 3. नंबर 1 ड्रॉवर, सेकेंड ड्रॉवी, एंड थर्ड पेई. ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड पेई. 3 पार्टीज होते हैं यहां पे. आपने पढ़ा क्या? मैंने बोला था अच्छे से पढ़ो. क्रॉस चेक, बेयरर चेक, ये टाइप्स कौन पढ़ेगा? वहां पे आंसर है इसका बेटा. 3 पार्टीज होती है वहां पे. आपने चेक दिया, सपोज मैंने चेक दिया रिया के नाम का, लेकिन चेक कहां पे गया? ये रिया ने चेक पहले कहां पे डिपॉजिट किया? बैंक में. मतलब 3 पार्टी है. मैं हूं, रिया है और बैंक है. सो देयर आर 3 पार्टीज. अब इनको क्या बोलना है? ड्रॉ करने वाला चेक मैं हूं. ड्रॉवी कौन है? किस पे ड्रॉ किया मैंने? रिया है. और पे करने वाला कौन है? बैंक है. सो दैट वे अराउंड. और आई कैन से दैट आई एम द ड्रॉवर, बैंक इज द ड्रॉवी, एंड टू हुम द चेक इज पेएबल? रिया, दैट इज पेई. ये रिया को चेक जाने वाला है, पेमेंट उसके अकाउंट में जाने वाला है. सो दैट वे अराउंड. सो दीज आर द 3 पार्टीज. एक बार पढ़ लीजिए वहां पे जाके. नेक्स्ट वन, लास्ट वन. Which check? The dash check is more safe than other checks as it cannot be encashed on the counter of the bank. कौन सा चेक होता है बेटा ये? Cross check. Yes, the crossed check. The crossed check is safer. क्यों? इसका पेमेंट काउंटर पे हाथ में नहीं देते, बैंक अकाउंट में जाता है ट्रांसफर, इसलिए क्रॉस चेक होता है वो. क्रॉस मतलब ऊपर 2 लाइन ड्रॉ करना, याद रखिए. मैंने बताया था आपको एक लेक्चर में. नहीं, अगर ध्यान में होगा तो YouTube पे जाके लेक्चर देखिए. मैंने ये एक्सप्लेन किया था, वहां पे 2 लाइन भी ड्रॉ करके बताई थी क्रॉस चेक कैसे होता है ना. बियरर चेक नहीं देना चाहिए, जनरली क्रॉस चेक देना चाहिए. सो हियर वी आर डन. ये स्पेसिमेन बनाने, टैक्स इनवाइस, रिसीट, क्रॉस चेक और कैश वाउचर का जो हमने पहले ही देखे थे, तो ये पार्ट जरूर एक बार फिर से पढ़ लीजिए बेटा, अगर पढ़ा नहीं होगा तो. और पढ़ा होगा तो और एक बार पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, परमानेंटली ध्यान में रह जाता है और नुकसान नहीं होता. मुझे पता है आपने ये इग्नोर किया होगा, ये इग्नोर करने का पार्ट नहीं है. देखिए जाके क्रॉस चेक क्या होता है, बेयरर चेक क्या होता है, ऑर्डर चेक क्या होता है, उसी के साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाउचर, उसके स्पेसिमेन जाके देखने चाहिए. 4 पेज का कंटेंट है बेटा. It won't take more than half an hour to read it very properly. Wherever required, you can underline it and you can highlight it as important. Am I right, everybody? तो ये पढ़ना जरूरी है. सब लोग आज ही पढ़ेंगे. Is that a promise, everybody? Yes or no? Quickly. सब एक साथ बोलना है. पढ़ेंगे या नहीं? यहां पे तो लोग बोल रहे पढ़ेंगे, और ऑनलाइन वाले शांति है. हम शांत रहेंगे. Yes, sir. गुड. चलो, एक रिप्रेजेंटेटिव है. Correct the following statements and rewrite the statements. Yes, Tanish, what is the doubt? नहीं बेटा, narration is more important. वाउचर तो पहले हुआ, जर्नल एंट्री के बाद वाउचर की क्या जरूरत है? जर्नल एंट्री आने के पहले ही आपको वाउचर की जरूरत पड़ती है. जर्नल एंट्री आने के बाद किस चीज की जरूरत पड़ती है? नरेशन की. वाउचर नहीं लिख सकते. नरेशन इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 7, आपको यहां पे क्या बोला है? करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड रीराइट द स्टेटमेंट्स. इसको करेक्ट करना है और फिर रीराइट करना है. बोलिए, फर्स्ट वन कौन बोलेगा? रश्मिता, इफ यू कैन गो फॉर ऑल दीज 5 स्टेटमेंट्स प्लीज. यस रश्मिता. क्वेश्चन नंबर 7, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड रीराइट द स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट को करेक्ट करना है और रीराइट करना है. क्वेश्चन नंबर 7, इफ यू कैन टर्न ऑन योर कैमरा इज ऑफ. या yes please.
Yes, Rasvita, go ahead. Number 1. Only monetary transactions are recorded in journal. Yes, all business transactions are recorded in the journal. इसके बजाय क्या होना चाहिए? Only monetary transactions are recorded in the business. वैसे ट्रांजैक्शन तो मेरे ख्याल से मॉनिटरी होते हैं, है ना? ट्रांजैक्शन जब बोलते हैं दोज आर ऑलवेज मॉनिटरी ओनली. तो चेंज क्या होना चाहिए? What should be the change in statement 1? All business transactions are recorded in the journal. कोई चेंज करने की जरूरत है या सब सही है? क्या करना है फिर चेंज? नहीं, जर्नल ही है ना. जर्नल इज राइट आंसर. वैसे मॉनिटरी सही तो लगता है. यस, मॉनिटरी होना चाहिए ट्रांजैक्शन. ऑल मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल. नंबर 2. यस अस्मिता. Cash discount is recorded in the book. यस, नॉट रिकॉर्डेड के बजाय क्या होना चाहिए? It is recorded. It has to be recorded. Trade discount is not recorded. Cash discount has to be recorded. Number 3. You're on mute. Unmute yourself. Journal is book of primary entry. Journal is a book of primary entry or prime entry. Journal is a book of prime entry or primary entry. Number 4. Yes, beta. GST imposed by the government of India from 1st July 2017. 18 नहीं हो, 17 होना चाहिए. 17 खतरा, 18 नहीं है वहां पे. 2017 वो करेक्शन है वहां पे. So GST is imposed by the government of India from 1st of July 2017. Number 5. Machinery purchased by the proprietor. Increase his capital. Yes, अगर प्रोप्राइटर मशीनरी खरीदेगा तो उसका कैपिटल बढ़ जाएगा. क्यों? बिकॉज असेट बढ़ रहा है उसका. एंड दैट वे अराउंड ऑब्वियसली कैपिटल शुड इंक्रीज एंड शुड नॉट डिक्रीज. कैपिटल डिक्रीज होने का चांस एक ही है या दो होते हैं, एक ड्रॉइंग और दूसरा नेट लॉस. आपने अगर विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए तो कैपिटल घटता है, और आपको लॉस हुआ तो भी आपका कैपिटल घट जाता है. बाकी केस में तो कैपिटल घटने का कोई चांस नहीं है. प्रॉफिट हुआ तो बढ़ेगा, असेट खरीदेंगे तो भी बढ़ जाएगा कैपिटल. दैट वे अराउंड. सो राइट वन. क्वेश्चन नंबर 8. हु विल गो फॉर दिस? यस प्लीज. 2017, 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 जीएसटी इंप्लीमेंटेशन का डेट है बेटा, याद रखिए. क्वेश्चन नंबर 8. डू यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स? यस ईशा, इफ यू कैन गो फॉर दिस. Narration is required for every entry. Agree. नरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी एंट्री. एग्री. कोई यहां पे हमें रीजन नहीं देना है. सेकेंड, जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स. उन्होंने सेल्स दिया, यहां पे होना चाहिए सर्विस टैक्स, एंड हेंस वी डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट. बराबर है ना? गुड्स एंड सेल्स नहीं होना चाहिए, गुड्स एंड सर्विस होना चाहिए, इसलिए स्टेटमेंट डिसएग्री. यस, थर्ड वन ईशा. Discount is not. यू हैव टू राइट डाउन डिसएग्री, क्योंकि उन्होंने बोला है एग्री और डिसएग्री लिखो. Wages paid for installation of machinery is debited to wages account. Disagree. डिसएग्री. इट हैज टू बी डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट. तीसरा रह गया बेटा, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट. Agree. एग्री. यस, ट्रेड डिस्काउंट हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, और ये स्टेटमेंट को हम एग्री करते हैं. नेक्स्ट. The process of entering or recording the transaction in journal is called Yes. as journalizing. Agree. The process of entering or recording the transactions in a journal is called as journalizing, and we agree with this one. Right? Question number 9. Calculate the following दिया है. Question number 10 हमने पहले ही कर लिया था मेरे ख्याल से. बराबर है? नहीं किया क्या? 9 और 10 करना है फिर. Can we finish right now? Question number 9 and 10. Yes, students, कर सकते हैं फटाफट. 9 और 10 everybody.